Okay, so we were doing the industrial methods to reduce air pollution. What we can do is previously, before that, we did all the methods that we can use to reduce domestic air pollution, the air pollution which arises because of cooking and all domestic purposes. Okay, तो लास्ट टाइम उन्होंने मशीन के बारे में पढ़े थे, बायो फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़े थे, फिर फैब्रिक फिल्टर के बारे में पढ़े थे. ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट स्क्रबर. ओके, स्क्रबर तुमने नाम पहले भी कॉमनली सुना होगा. स्क्रबर बेसिकली मीन्स टू क्लीन. Okay, so therefore these scrubbers are basically air scrubbers. The air scrubbers remove pollutants from gas emissions. These scrubbers consist of a throat through which harmful gas and water are passed. Okay, तो यहाँ पे देखो ये स्क्रबर का पूरा डायग्राम दिया हुआ है. तो यहाँ पे बीच में एक पर्टिकुलर पार्ट रहेगा, एक पर्टिकुलर पाइप रहेगा. लेट मी जस्ट ओपन अनदर इमेज. ये इमेज में बराबर समझ में नहीं आएगा. जस्ट वन सेकंड. अगर मैं ऐसा करके ओपन करूं, जस्ट वन सेकंड. Yeah, so I hope that you are able to see this diagram now. Okay, now this is basically a scrubber. Okay, तो यहाँ पे से एक पर्टिकुलर एक ये पार्ट रहेगा. ठीक है, ये पार्ट में से हम लोग क्या करेंगे, contaminated gas is kept inside through this particular part. Okay, and then this particular part is called as a throat. ओके, एंड दिस इज द वेटेड एल्बो. तो यहाँ पे से हम इसको लिक्विड रिजर्वयर, ये सब साइक्लोनिक मिस्ट गैस सेपरेशन, यहाँ पे अलग अलग पार्ट है. बेसिकली क्या है कि स्क्रबर का तुमको एकदम टेक्निकल डिटेल यहाँ पे पढ़ने का नहीं है, what actually technically happens, but you just have to remember that contaminated gas is kept over here. ये पार्ट पर्टिकुलर पार्ट से कंटामिनेटेड गैस जाता है और यहाँ से व्हाट वी गेट इज क्लीन गैस आउट. ओके, सो हेंस दिस स्क्रबर कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. ओके, बेसिकली वट एवर इंडस्ट्री का जो वेस्ट आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं. Scrubbers are often used to waste disposal system to trap emission of sulfur dioxide, ammonia, metal fumes in chemical mining and metallurgical industries. Okay, the resulting byproduct of the wet scrubber have their own commercial value as chemicals and fertilizers. Okay, so ये जो सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया जो ट्रैप हो गया स्क्रबर में, जो पकड़ लेता है वो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया को हम लोग अलग फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री में बेच भी सकते हैं. Next we have electrostatic precipitator. So therefore this is electrostatic. Okay, यहाँ पे what we are having is the combustion whatever is happening, burning जो भी हो रहा है. Okay, वहाँ से जो भी गैस जनरेट होगा, जो भी अपना contaminated gas है, it will be passed through this particular arrow to the precipitator. This precipitator will basically contain electric charge. Okay, electrostatic precipitator है वो. और यहाँ पे इस electric charge की वजह से जो भी यहाँ पे waste material है वो precipitate हो जाएगा. precipitate का मतलब क्या होता है, अलग लेयर बन जाना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लिक्विड में अगर तुम कुछ भी सॉलिड अगर मिक्स करोगे तो आफ्टर सर्टेन टाइम तुम देखना वो अलग लेयर बन जाता है वो. ठीक है, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्ट, अनडिसॉल्वेबल जो भी है. तो वंस वी क्लीन दैट प्रेसिपिटेशन, then what is left outside is just cleaned gas that is given outside. And this precipitation happens because of electrostatic charge. That electrostatic charge will cause all the impure material to precipitate immediately. Okay, so यहाँ पे dust particle वैसा भी हो जाएगा. And this machine is having 99% efficiency. Okay, so this is a highly efficient machine जहाँ पे बहुत सारा हम control कर सकते हैं air pollution को. Okay, next we are having plate tower. ये प्लेट टावर का डायग्राम दिया हुआ है. ओके, प्लेट टावर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग गैसियस पोल्यूटेंट्स टू लिक्विड फेज. वंस यू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, तो गैस में क्या होता है, सारा इम्प्योरिटी मिक्स होता है. लिक्विड में फिर वो इम्प्योरिटी टिक नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा. These devices are efficient use for removal of gaseous pollutants. Their effectiveness depends upon the solvent used during transformation process. Okay, now suppose for example there is certain gas dust particle which is mixed inside the gas. Okay, so this is now highly pollutant. Once I convert that gas into a liquid phase, तो डस्ट तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा ना, तो लिक्विड बह के निकल जाएगा और डस्ट बीच में ट्रैप हो जाएगा. देन वी कैन फिल्टर इट आउट लाइक अ नॉर्मल लिक्विड एंड द डस्ट पार्टिकल्स विल बी ट्रैप्ड. So that is basically called as plate tower. So this thing happens by transforming the gas, emitted gas, into a liquid phase. Okay, so hence we have also done page number 6. Let me open the next page. Just one second. इसका next page में क्या आएगा? ठीक है,
let me just zoom it a little bit. Oh, okay. So all techniques used for arresting pollutions require additional amount of energy. They require a very huge amount of energy. ये जो मैं electric precipitator की बात कर रहा हूँ, scrubber की बात कर रहा हूँ, तो ये electricity consume करते हैं. They consume a very high amount of this thing. So this is the reason why these industries, they try to avoid this thing. वो लोग ये सब नहीं करना चाहते. क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा मशीन इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. So industries, they contribute a lot to the pollution. In fact, majority of the pollution comes from the industries only. Industrial area में सबसे ज़्यादा pollution होता है. Domestic pollution is comparatively very very less. Okay, the smokestacks of factories release large amount of smoke every day. Okay, so therefore they should be sufficiently tall so that the effect of the smoke is diluted at a height. तुमने देखा रहेगा कि बहुत सारे मशीन, बहुत सारे फैक्ट्रीज के वहाँ पे बड़े बड़े चिमनी होते हैं. Now this chimney, what they do is that कि अगर ग्राउंड लेवल पे अगर pollutant emit होगा तो ग्राउंड पे तो भी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो देयर. ओके, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ पोल्यूशन कैन हैपन, हमें डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. लेकिन अगर टॉल चिमनी हमने बिल्टअप कर दिया और वो टॉल चिमनी में ऊपर ऊपर से ही पूरा गैस एमिट कर गया तो नीचे ह्यूमन बींग को अफेक्ट नहीं करेगा. पोल्यूशन रिड्यूस नहीं हुआ है, बस उसका एडवर्स इफेक्ट थोड़ा रिड्यूस हो गया है. एंड मोस्ट ऑफ द मशीन्स कंज्यूम्स फॉसिल फ्यूल्स लाइक व्हाट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह वगैरह. ठीक है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच टू ऑल्टरनेटिव. तुम अगर एक फैक्ट्री में जाओगे, जाके बोलोगे टू कन्वर्ट टू सोलर सेल, तो वहां पर वो नहीं कर सकते. सो एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, कि हम टेक्नोलॉजी को, सोलार को यहाँ पर हम यूज कर पाए. तो इक्विपमेंट इन इंडस्ट्री शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली. अगर तुम प्रॉपर मेंटेनिंग करोगे, अगर सपोज यू आर हैविंग अ कार, ओके, इफ यू डू प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ दैट कार, इट विल प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन. बट इफ यू डोंट डू द मेंटेनेंस, अगर तुमने इंजन ऑयल रिप्लेस नहीं किए, तुमने बराबर अगर इंटरनली तुमने क्लीन नहीं किए खोल के, तो वो और ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है. ठीक है. एफिशिएंसी reduces. So it is very important for us to maintain all the machine that we have. Development, application, and encouragement of best available practicable techniques should be used. Okay, so we should encourage the industries. How can we encourage? By reducing taxation. हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि जो जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अपने फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक स्क्रबर इंस्टॉल कर लेंगे, हम लोग उनको टैक्स में 10% का रिलैक्सेशन दे देंगे. Okay, so now the government has done 10% relaxation, because of which what will happen is that के सारे इंडस्ट्रीज वो लोग को 10% बचाने के चक्कर में वो लोग खुद लगा देंगे. बोले नहीं नहीं, हमने इलेक्ट्रिक स्क्रबर लगा दिया है, अब हमें 10% का जो टैक्स में रिलैक्सेशन है वो चाहिए. अब गवर्नमेंट का भी नुकसान नहीं होगा. यू नो व्हाई? बिकॉज when pollution reduces, तो people falling ill also reduce. Okay, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे. अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो लोग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, गवर्नमेंट मेडिसिन का कंजम्पशन नहीं करेंगे. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया इवन टुडे आर नॉट दैट रिच दैट दे कैन अफोर्ड गोइंग टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. तो इसलिए बहुत सारे इलाज जो होता है वो इधर होता है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. इनफैक्ट आज भी तुम देखना, जितने भी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स, दे आर एडमिटेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. जो बेड्स है, जो अलग अलग क्लिनिक्स है, उसकी तैयारी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है. ठीक है. तो अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो गवर्नमेंट को वहां पे पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगा. तो 10% भी बचा लिया उन लोग ने, है ना. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्रीज. तो ऐसे टाइप के लॉज हमें और इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है. एयर पोल्यूशन कैन बी कर्व्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन. ओके, वी कैन टेल पीपल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, वी कैन एडुकेट पीपल. तुमने ये देखा रहेगा कि कुछ कुछ लोग बिजली हमेशा चालू रखते थे, फैन, लाइट, एसी. हम एकदम ठंडी में 19 टेम्परेचर, 18 टेम्परेचर पे यूज करते हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसी एट 18-19 डिग्री सेल्सियस, वी मस्ट इंस्टेड यूज इट ऑन 24. 24 इज अ perfectly, what do you say, comfortable temperature. ऐसा नहीं कि 24 डिग्री में पसीना छूटेंगे. 24 इज अ परफेक्टली कंफर्टेबल टेम्परेचर, जहाँ पे हम ह्यूमन बींग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. एकदम आराम लगेगा. और वहाँ पे बिजली का कंजम्पशन भी बहुत कम होता है. तो हमारा दोनों फायदा होगा. वी विल गेट कंफर्ट ऑल्सो इन हॉट वेदर. गर्मी चल रही है बाहर, 40 डिग्री है, तुम एसी ऑन करके 24 पे सेट कर दो, और तुमने बिजली का बिल भी बहुत सेविंग कर दिया बाय रिड्यूसिंग 19 से 24 करके. ये 5 डिग्री में तुम्हारा बिजली का बिल बहुत बच जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, मेटेरोलॉजिकल कंट्रोल्स. ओके, द साइंस ऑफ मेट्रोलॉजी हैज ग्रेट बेयरिंग ऑन एयर पोल्यूशन. ओके, मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वेदर. ओके, हमारा जो वेदर होता है वो, अब तुमने ये देखा रहेगा कि वेदर के वजह से बहुत सारे जगह पे एयर का जो क्वालिटी है वो चेंज होता है. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे बारिश का सीजन चालू है, तो बारिश के टाइम पे देखना, बारिश के टाइम पे तुम अगर आसमान की तरफ देखोगे तो तुमको बहुत ही खूबसूरत लगेगा. एंड यू विल फाइंड इट टू बी वेरी प्लेजेंट, वेरी क्लीन. ओके, so that is the meteorological control of air pollution.
weather as controlled. Air pollution can affect the weather and weather can affect air pollution in variety of ways. ठीक है, दोनों affect कर सकते हैं. An air pollution problem involves three parts: the source, the movement of pollutant, and the recipient. And all meteorological phenomena are a result of interaction of the elemental property of the atmosphere, heat, pressure, wind, moisture वगैरह. ठीक है. अभी I'll give you an example of this. You must have heard about Delhi का air pollution का scenario. Okay, Delhi is suffering from the worst air pollution in one of the worst cases in the world. Okay, Delhi में normal सांस लेना is like smoking 10-20 cigarettes a day. ठीक है. अभी तो दिल्ली में तो इतना ज़्यादा भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वो सब तो नहीं. इट्स अ सिटी. ओके, इट्स नॉट अ इंडस्ट्रियल एरिया एंटायरली. एंड दिल्ली में इतना ज़्यादा कार भी नहीं है कि इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस हो जाए. तो होता क्यों है वहाँ पे? Why does Delhi get so much polluted every year in the month of November and December that it becomes difficult for people to even breathe? Okay, the reason is in the neighboring states of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, ये नवंबर दिसंबर टाइम होता है सारा लैंड क्लियर करने के लिए, ताकि वो लोग नेक्स्ट क्रॉप का स्टार्टिंग कर सके. ओके, तो तभी क्या होता है, तभी जब वो लोग नेक्स्ट क्रॉप को जब लगाना होता है सीड, तभी वो लोग ये क्रॉप को अभी जो लैंड है उसको जला देते हैं. दे कैन मैन्युअली आइदर क्लीन द एंटायर फार्मिंग लैंड और दे कैन जस्ट स्टार्ट अ फायर. एंड बाय स्टार्टिंग द फायर ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा लैंड जो है वो क्लियर हो जाएगा. सारे जो प्लांट बचे, जो ट्री बचे, वो जल जाएंगे. ठीक है. नाउ द फार्मर्स दे डोंट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी कि वो लोग इतने लोगों को हायर करे कि बड़े बड़े फार्म्स जो कई एकड़ की होती है उसको क्लियर कर सके. सो व्हाट डू फार्मर्स डू? अ वेरी चीप एंड अ वेरी इफेक्टिव वे, आग लगा देते हैं वो लोग. ठीक है. तो ये जो आग लगाते हैं, इसका जो धुआं निकलता है, ये जो धुआं, इसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं. स्टबल बर्निंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द नॉर्दर्न इंडिया. ये जो पूरा धुआं है, ये पूरा का पूरा धुआं फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट comes to Delhi and it gets stuck. Okay, and people in Delhi, they have difficulty in breathing then. ओके, सो दिस इज मेट्रोलॉजिकल कंट्रोल. वेदर की वजह से पंजाब में पोल्यूशन हो रहा है, वहां से धुआं निकला, वो वेदर ने, हवा ने कैरी कर करके पंजाब से उसको, पंजाब से पाकिस्तान भी जा सकता था अगर वेस्ट जाता तो, नहीं, बट पाकिस्तान नहीं गया ना, ईस्ट आ गया, दिल्ली की तरफ आ गया. सो बिकॉज ऑफ weather condition, the climatic condition, the pollution condition of the Delhi is changing. Hence that is called as meteorological control. Pollution can affect local weather also. Okay, areas near or downwards from the large paper mills where there is an increase in the rainfall. This is because particles from the mills act as a nuclei on which raindrops facilitate rain. Okay, अगर dust particle surrounding, तुमने ये भी देखा रहेगा कि rain seeding भी होता है. Now countries like UAE, Saudi, they are going for rain seeding क्योंकि it's a desert, वहाँ पे बारिश नहीं होती. तो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग डस्ट पार्टिकल्स ऐसा रिलीज करते हैं सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, कि उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर पानी जो है वो कंडेंस हो जाता है. अभी जैसे तुम अगर क्या बोलते हैं, घर में अगर तुम टेबल के ऊपर ठंडा ग्लास रख दोगे, ठंडा ग्लास के ऊपर कैसे पानी प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ठंडा ग्लास के ऊपर बाहर ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं. तो सेम वैसा इफ यू रिलीज डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर, उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर वाटर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. सो हेंस इट स्टार्ट्स रेनिंग. दिस आर्टिफिशियल रेनिंग मेथड इज कॉल्ड एज रेन सीडिंग. ओके, सो पेपर मिल में भी ये हो जाता है. लार्ज पेपर मिल जो होता है, वो लोग जो डस्ट पार्टिकल निकालते हैं, तो उसकी वजह से रेनिंग स्टार्ट हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन वेदर इज चेंजिंग. और दिल्ली का जो स्टबल बर्निंग था, बिकॉज ऑफ वेदर पोल्यूशन इज चेंजिंग. तो दोनों सिनेरियो interrelated है. Wind and temperature are affected by the quality and extent of pollutants in the air. Okay, some air currents can disperse pollutants in various directions. ठीक है, बहुत वर्टिकल यहाँ पे बेसिकली दे हैव गिवन जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. इफ यू जस्ट रीड थ्रू दिस थिंग यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, तो कभी कभी पोल्यूशन इंडस्ट्रियल सेंटर में जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है. तुमने ये भी देखा रहेगा कि जो यमुना कॉरिडोर है, वहाँ पर जो रिफाइनरीज और जो फैक्ट्रीज है, वहाँ से धुआं निकलता है, उसकी वजह से एसिड रेन भी होता है. तो पोल्यूशन की वजह से वेदर भी चेंज हो रहा है. ओके, एनवायरमेंटल बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहा है. ओके, सो हेंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. फ्यूल स्विचिंग. ओके, फ्यूल स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग फ्यूल को स्विच कर लेंगे, इफ फ्रॉम फॉसिल फ्यूल वी मूव टुवर्ड्स अदर टाइप ऑफ फ्यूल, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, ये वो, तो यहाँ पर हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. चेंज इन फ्यूल टेक्निक इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. यूज ऑफ लो सल्फर फ्यूल इंस्टेड ऑफ हाई सल्फर फ्यूल बाय इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज इन एग्जांपल. सो वी शुड यूज दिस थिंग जहाँ पे सल्फर कम हो, अमोनिया कम हो, नाइट्रोजन कम हो, तो यहाँ से हमारा पोल्यूशन कम होते जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वन मेथड. जस्ट रीड दिस थिंग विल अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट इज जोनिंग स्ट्रेटेजी. जोनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? जोनिंग स्ट्रेटेजी का मतलब हम लोग अलग अलग जोन डिक्लेयर कर देते हैं जहां पर बहुत सारे एक्टिविटी हम बैन करके रख देंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो वेदर कंडीशन वो चेंज नहीं होगा. लाइक दिस इज अ फॉरेस्ट जोन. ओके, नो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल activity can be carried out over here.
दिस इज अ फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल जोन, लाइक बॉम्बे के नजदीक में भिवंडी, तुम अगर देखना जितने भी फैक्ट्रीज है अपने यहाँ पे, वो सारे के सारे फैक्ट्रीज भिवंडी में होते हैं। ओके, अब भिवंडी में क्यों होते हैं, बॉम्बे में अपने एरिया में क्यों नहीं होते? अगर यहाँ पर बॉम्बे में if there is a person who is living over here, then if he is working in the factory, then he has to travel all the way back to Bhiwandi and then come back again. You know why? Because Bombay is a city जहाँ पे population density is very very high. Hence the government has not given any permission to any industry or any factory to set up over here, because of which यहाँ पे pollution कम है। तुम इमेजिन करो, अगर तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे कोई इंसान अगर फैक्ट्री चला रहा है, पेपर मिल चला रहा है, ठीक है, स्टील रिफाइनरी ये चला रहा है, तो कितना धुआं निकलेगा, कितना वेस्ट मटेरियल निकलेगा, कितना नॉइस पोल्यूशन होगा, कितना साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एवरीथिंग, केमिकल रिलीज, कितना कुछ होगा। तो हमने ये जगह को हम लोग ने कमर्शियल जोन डिक्लेयर करके रख दिया। यहाँ पे ओनली नॉर्मल एक्टिविटी आर दिस थिंग। भिवंडी इज अ इंडस्ट्रियल जोन। ओके, ऑल द सह्याद्री दैट इज अ फॉरेस्ट जोन। वहाँ पे नथिंग इज अलाउड, इवन इफ यू गो एंड इफ यू आर सिटिंग ओवर देयर, यू आर मतलब ऐसा नॉर्मल सिटिंग वेटिंग तो अलाउड है, बट तुमने अगर वहाँ पे घर बना दिया, it is not an industrial activity, but it is a domestic activity only, making a house, but that is also not allowed. Okay, so by making different zones, we can control the what do you say, weather of that. Okay, यहाँ पे हम लोग उसको adverse effect होने नहीं देंगे। आरे has been declared as a forest zone, तो तुम अगर बॉम्बे में अगर तुम जाओगे गोरेगांव, आरे, वो सब साइड में, तुमको सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना के रख दिया कि वहाँ पे कोई आ नहीं सकता। ठीक है, फाइन। तो कोई पेज नंबर 7 is also over. Let us go to the next page. Just one second. Okay. Yeah, so this is also that same thing only. In India, under the Indo-German bilateral program, a methodology has been developed for zoning, mapping, and siting of the industries. So we have a method of making proper zones. Some of the land industries have maintained their own monitoring station for the pollution control. Okay, so therefore there is a state pollution control board. तो ये जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि कहीं पर ज्यादा पोल्यूशन ये रिलीज ना हो। अगर तुम ये देखोगे कि तुम्हारे एरिया के नजदीक में जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर किसी ने एक फैक्ट्री चालू कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज कर रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, देन यू कैन गिव अ कंप्लेन एट द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दे विल कम एंड दे विल चेक के ये जोन में कैसे उसने स्टार्ट कर दिया। ओके, फाइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग पेनल्टीज, वही पेनल्टी एंड सब्सिडी। ओके, तो दे विल बी पुटिंग अ पेनल्टी। सपोज तुमने अगर ये केमिकल फैक्ट्री खोल दी तो ये पेनल्टी, वो केमिकल फैक्ट्री खोल दी ये पेनल्टी। फॉर अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, रेगुलेटरी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो therefore we are having CPCB, ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, हेडक्वार्टर्ड जोनल एंड रीजनल ऑफिसेस। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है with respect to particular state, and pollution control committee with respect to union territories. So we are having one central unit which is the main head. Okay, then we are having state जो हर एक स्टेट में इंडिविजुअली देखेगा, और फिर यूनियन टेरिटरी के लिए वी आर हैविंग पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज। सो दीज कमिटीज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर determining the fine and the subsidies. Okay, तो सीपीसीबी का सेंट्रल का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका फुल मेन उसका फंक्शन क्या है? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल बी गिविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस। ओके, देखो कंप्लीटली कोल पेट्रोल हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारा इकोनॉमिक लॉस इतना हो जाएगा कि हम और कुछ बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और हम कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल को बर्न भी नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज देन इंडस्ट्री की वजह से एनवायरनमेंट बहुत डैमेज हो जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क वी कैन टेक, व्हाट वी कैन रिड्यूस, व्हाट वी कैन नॉट। ओके, सो हेंस दैट एडवाइस टू द गवर्नमेंट इज गिवन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। ओके, to execute nationwide program, to provide technical assistance to states, plan and organize the training of person engaged in program for the prevention, control and abatement of air pollution। तो अलग अलग लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, जो लोग चेक करते हैं कि कितना पोल्यूशन है, उसके बारे में जब स्टडी होता है, दैट इज डन इन CPCB। collect, compile and publish technical and statistical data. Okay, they will be collecting, like in Bombay throughout the year pollution का level इतना रहता है, in Delhi throughout the year pollution का level इतना रहता है, in Goa for example throughout the year pollution का level इतना रहता है। So that is the responsibility of this thing. Okay, lay down the standard for quality of air, so they will be saying कि इतना healthy है। Okay, 0 to 10 अगर तुम्हारा AQI रहेगा, AQI मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, that is called as AQI. Currently right now in Bombay it is AQI is 13. Okay, that is very good. 0 to 10 is very healthy, 10 to 100 is like healthy। ठीक है, 100 के ऊपर जाएगा तो अनहेल्दी बनने लग जाएगा, 300 400 जाएगा तो हाईली अनहेल्दी, इनफैक्ट हजार्डस। दिल्ली का तो कुछ 700 800 चला जाता है, तो इट इज पॉइजनस इनफैक्ट। ओके, वहाँ पे दिल्ली में सांस लेना मतलब पॉइजन सांस लेना। ओके,
बिकॉज राइट नाउ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी बॉम्बे में. अभी राइट नाउ एट प्रेजेंट द AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ बॉम्बे इज 13, which is very healthy. If you go outside and if you breathe right now, then that is good air. Okay, collect and disseminate information and matters relating to the air pollution. तो ये सब ये डेटा प्रोवाइड करता है. Then we're having penalties. तो पेनल्टी में क्या आएगा? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, फर्स्ट दे विल आइडेंटिफाई कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये एरिया में उसने ये फैक्ट्री लगा दिया जो अलाउड नहीं है, वो एरिया में उसने वो फैक्ट्री लगा दिया. ठीक है, यहाँ पे उन लोग ने ये मशीन नहीं लगाया, मेंटेनेंस बराबर नहीं किया. प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज कॉजिंग द पोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज. ओके, यमुना कॉरिडोर करके एक जगह है. ठीक है, यमुना कॉरिडोर मतलब अलोंग द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर. अब क्या हुआ था कि यमुना रिवर, बिकॉज रिवर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्लीन वाटर, तो यमुना रिवर के अराउंड बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बन गए इन उत्तर प्रदेश. ओके, अब उससे क्या हो गया कि गवर्नमेंट वाज आल्सो वेरी हैप्पी, इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो बिजनेस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड उन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी नहीं किए. फिर बाद में उन्होंने देखे कि ये जो बारिश हो रही है अभी, वो बारिश की वजह से जो पूरा ताजमहल है वो येलो येलो पड़ रहा है. तो हेंस दे कंडक्टेड द स्टडी एंड दे फाउंड आउट कि अरे बाप रे, यहाँ पे जो यमुना में हमने जो फैक्ट्री सेटअप किए हैं यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रिक्स कवर बराबर हम लोग ने मशीन इंस्टॉल नहीं किए, मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वहाँ से पूरा ताजमहल डिस्ट्रॉय हो रहा है. सो दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम वाज डन एंड इन दैट एंटायर एरिया, जो एरिया जाके ताजमहल को अफेक्ट कर सकता है उसको यमुना कॉरिडोर करके मतलब डिक्लेयर कर दिया गया. अभी तुम्हें अगर यमुना कॉरिडोर में अगर जाने का है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर इफ यू हैव टू सेट अप इंडस्ट्री, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लाइसेंस, एंड इवन इफ यू गेट अ लाइसेंस दैट यू हैव टू have very strict pollution control measures. Okay, because you cannot pollute in that area because it's a wonder of the world. Okay, you cannot destroy that. फिर emission standard. ठीक है, अभी एमिशन स्टैंडर्ड का क्या होता है? तुमने ये देखा रहेगा कि बहुत सारे मोटरसाइकिल्स, कार्स वगैरह वगैरह वो सब में वो लोग पीयूसी बनाते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल चेक. ओके, अब वहाँ पर क्या होता है? वो लोग ये देखते हैं कि इतना टाइप का कितना ये गैस रिलीज हो रहा है, पॉइजन जो क्या बोलते हैं, पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, और उसके स्टैंडर्ड भी होते हैं. लाइक अभी राइट नाउ देयर इज BS6, भारत स्टैंडर्ड 6th लेवल. ठीक है, भारत स्टैंडर्ड 6th लेवल मतलब वो पोल्यूशन कंट्रोल में 6th लेवल पे, इट इज वेरी गुड. उसके पहले BS1 था, भारत स्टैंडर्ड 1, भारत स्टैंडर्ड 2, भारत, तो हम लोग धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं स्लोली. अभी देखो भारत 6 के बाद, BS6 के बाद BS7 भी आएगा. एक बार जब BS7 आ जाता है तो फिर BS6 के सारी गाड़ियां बैन हो जाएगी. एवरी कार मैन्युफैक्चरर, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैज टू कंप्लाई विद दिस BS6. करंटली इट इज BS6. ऐसा यूरोप में यूरो है, Euro 1, Euro 2, Euro 5 ऐसा करके है. सो दैट इज स्टैंडर्ड. ओके, राइट नाउ इफ आई मेक अ मशीन, इफ आई मेक अ कार, इफ आई मेक अ मोटरसाइकिल, देन इट हैज टू हैव दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया. अगर ये ज़्यादा पोल्यूशन रिलीज कर रहा है तो मेरा PUC में पकड़ा जाएगा और फिर मेरा गाड़ी में चला नहीं पाऊंगा, वो चलाने पे फाइन लग जाएगा. ठीक है, देन एनवायरमेंटल ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? टू चेक कि हमारा एनवायरमेंट में लाइक देयर विल बी कंटिन्यूअस ऑडिट्स हैपनिंग इन बॉम्बे, इन कोलकाता, इन एवरी प्लेसेस. वेल दे विल स्टडी के पोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. डेवलपमेंट ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी. ओके, डिफरेंट टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करना, उसको इम्प्लाई करना, ये सब उन लोग के हाथ में है. ठीक है, हजारस वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, तुमने देखा रहेगा कि सुबह सुबह जो वेस्ट की जो गाड़ी आती है BMC की, तो एक अलग BMC की गाड़ी आती है वो डोमेस्टिक वेस्ट लेके जाती है, एक अलग गाड़ी आती है वो हॉस्पिटल का हैजार्डस वेस्ट लेके जाता है, एक अलग गाड़ी आती है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट लेके जाती है. ये कोई भी गाड़ी जाके कोई भी लेके नहीं आता, उसका डंपिंग का मेथड भी अलग अलग होता है. Okay, when they take all this waste and when they throw it, then there is different process for domestic, different process for medical, different process for industrial waste. Okay, so and that is called as hazardous waste management. Okay, let us do one more topic today, subsidies. Okay, subsidies का देखो अभी मैंने example दिया था. इट इज़ वेरी सिंपल. मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है. गवर्नमेंट ये बोल सकते हैं कि अभी देखो सोलर पैनल इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके, तो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज दैट के दे कैन गिव सब्सिडी ऑन सोलर पैनल. सब्सिडी का मतलब क्या रहेगा कि अगर एक सोलर पैनल 100 रुपीज़ का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो गवर्नमेंट विल से के to the company, suppose company XYZ is selling solar panels, government will say to the company XYZ that out of that 100 rupees you charge only 50 rupees from the customer. The remaining 50 rupees will be given by the government. This 50 rupees given by the government is called as subsidy. Okay, understood. LPG के ऊपर सब्सिडी मिलता है, पता है तुमको? LPG का सिलेंडर कुछ अगर 800 रुपए का है
तो उस पे 150 रुपये का सब्सिडी अपने को वापस रिटर्न बैक मिल जाता है, अराउंड 130-140 रुपीज़ का सब्सिडी अपने को वापस मिल जाता है। तो सब्सिडी क्या होता है कि जो अच्छी-अच्छी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है, वो क्योंकि एक्सपेंसिव होती है, मेडिसिन के ऊपर सब्सिडी होती है। सपोज़ द मेडिसिन इज़ ऑफ लाइक व्हाट, लाइक 20 रुपीज़, गवर्नमेंट विल से दैट सेल दैट मेडिसिन फॉर 10 रुपीज़, वी डोंट वांट इट टू बी एक्सपेंसिव, ओके, वी विल गिव 10 रुपीज़ टू द कंपनी. So the payment to the company is being made partly from the government and partly from the customer. So this payment made by the government is called as subsidy, and it is used for government to encourage people to give more and more good product. तो सोलर पैनल लोग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उसमें सब्सिडी है, एलपीजी खरीदेंगे क्योंकि सब्सिडी है, केरोसिन में खरीदने जाऊंगा मैं देखूंगा तो केरोसिन का 800 रुपये का ही है, लेकिन एलपीजी 800 रुपये का मेरे को 150 रुपये वापस मिल जाएगा एज अ सब्सिडी, तो मैं क्या जाऊंगा, मैं एलपीजी लूंगा ना, क्योंकि वहाँ पे 150 रुपये का मेरा फायदा हो रहा है. तो हेंस गवर्नमेंट शुड इंक्रीज सब्सिडी, दे शुड गिव लोन्स, दे शुड गिव टैक्स का कंसेशन, दे कैन गिव ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया है इंडस्ट्रीज को, तुम ये लगाओ वो लगाओ, स्क्रबर्स लगाओ, फिल्ट्रेशन लगाओ, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटिंग मशीन लगाओ, वो सब लगाओ, दैट इज कॉल्ड एज ये. फिर लोन्स भी अगर कोई भी इंडस्ट्री को बोलेगी कि हमें ये चिमनी लगाने का है, हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने का है, तो फिर गवर्नमेंट विल गिव इजीली लोन टू दिस कंपनीज. ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी लोग को भी फायदा मिलेगा, तो कंपनी लोग को फायदा मिलेगा तो फिर वो लोग भी काम करेंगे पोल्यूशन कम करने के लिए. ठीक है, सो वी आर एंडिंग टिल ओवर हियर टुडे. ओके, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट.